Hello, good morning, children. We were discussing about the chapter, or we can say the poem, The Tale of Custard the Dragon. This is the story. I have told you this is the ballad. Ballad है, that is a narrative song or narrative poem, जो कि locally use में आती है. And in this poem we have discussed about the family, and it is the family of Belinda. Got it? How many we can say persons were living? White House, ठीक है, little black kitten and a dog and a dragon, यानी और एक वैगन कार. व्हाइट हाउस में व्हाइट हाउस है उसका नाम, where black kitten is living, little grey mouse is living, little yellow dog is living, and a red wagon also they are having, and a pet dragon. And what the three of them are doing with him? Three of them are making fun with the dragon. उस dragon से मजाक करते हैं. 3 stanzas we have completed. Got it? We have completed 3 stanzas in this poem, and I have explained you about the poetic devices which are used in this poem. Stanza by stanza they are used. Most of the poetic devices are used as a simile. When we compare two things using as or like, that is known as a simile. And repetition, same sound is repeated word, जैसे little same word is repeating. In this way, refrain, same sentence is repeating, that is known as a refrain. And you know, rhyme scheme of the poem are A, B, B, which I have explained you, and I also told you how we should use the rhyme scheme of the poem. Is that clear? So these all things are included in this poem. 3 stanzas we have completed. Next is 4th number, stanza number 4. Is that clear? Belinda tickled him. Tickled means होता है tease, मजाक करना, उसका हंसी उड़ाना. Belinda tickled him. To whom she was tickling? She tickled the dragon. She was tickling with the dragon. She tickled him unmerciful, without showing any mercy. She is saying she is tickling, or we can say she is teasing him without showing any mercy. कोई दया नहीं दिखा रही. Ink, blink and mustard, यानी ink, blink and mustard. The 3 members are also there in the family. Ink, blink and mustard. They rudely called him Percival. Percival मतलब होता है नाइट राइडर्स, जो रात को राजा के दरबारी होते हैं, उनको बोलते हैं राग दरबारी जो होते हैं. रूडली, बुरी तरह से उसको बोलते हैं कि तुम एक Percival हो. You are a Percival. To whom they are calling Percival? They are calling Percival to dagger. We can say dragon. They are calling Percival to dragon. Is that clear? They are rudely calling him the Percival. And you know, unmerciful, Percival, also these are the A. They all sat laughing in the little red wagon, and where they are sitting, red wagon, एक कार, और जो जिसका कलर क्या है, red. They all are sitting there. Means Belinda, Ink, Blink and Mustard, the dog. ठीक है, एक rat है, एक kitten है, Belinda खुद है वो लड़की, और उसका एक mustard dog. They all are laughing. To whom? At whom they are laughing? They are laughing at the dragon. And they are sitting in the red wagon at the Relio Trilio Cordly Dragon. और किसकी तरफ वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? ड्रैगन की तरफ. These are the 4 lines which I have explained you. Next is Belinda giggled. Giggled means also laugh. Giggle means laugh. Belinda is also giggling. Till she shook the house. And Blin said, "Weak." Weak means also known as a sound. Blin also making some sound, which is giggling for a mouse. And ये जो sound है, इस पे कौन हंसता है? Mouse. Who is laughing at this sound? Mouse. यानी Belinda giggled till she shook the house. और इतनी जोर से हंसती है वो Belinda कि पूरा घर हिलने लगता है. The complete house is making a movement. गड़गड़ाने लगता है. Then Belinda is laughing. And you know what happens? Blink said weak, and Blink is also making some sound. Weak means होता है sound. Weak, which is giggling for a mouse. और ऐसे sound को देखकर
Who is laughing? A mouse is laughing. Ink and mustard rudely asked his age. Whose age are they are asking? Ink and mustard rudely. They are not showing any interest in this dragon. They are asking the age of dragon. To whom they are asking the age? They are asking the age of dragon. When custard cried for a nice safe case. लेकिन वो बेचारा ड्रैगन है, वो चुपचाप बैठा है, वो बेचारा चिल्ला रहा है। जब वो उसको टीज करते हैं या उसको छेड़ते हैं या उससे बकवास करते हैं तो बेचारा एक कायर की तरह एकदम चुपचाप अपने उसमें जो उसका जहाँ पे रहता है ना, वो बेचारा नाइस सेफ केस, वो कहता है मुझे छोड़ दो, प्लीज लीव मी अलोन। मीन्स दे ऑल आर टीजिंग हिम, दे ऑल आर मेकिंग फन ऑफ हिम एंड ही इज ओनली crying for the safe case. Means he wanted to live alone there, but all are teasing him. These are the 4 lines which I have completed. Suddenly there's a s repeating हो रहा है, as suddenly, फिर दूसरे में भी as suddenly consonant sound हो रहा है ये। Suddenly they heard a nasty sound. Nasty means होता है bad, that is not good. Suddenly what happens? Suddenly all heard a nasty sound and mustard growled. Growl means होता है bark. Mustard growl means bark. Mustard क्या करता है? bark की करता है, bark भौंकता है कुत्ता। Mustard growled and they all looked round and everybody will become too much surprised because suddenly they hear something else. That is why everybody is surprised and growled and they all look round. Meow cried Ink. Ink is a kitten and how she is crying? She is making her own voice. Meow cried Ink and oh cried Belinda. And Belinda was also surprised. And what did Belinda say? Oh, क्या आ गया? For there was a pirate. Pirate होता है समुद्री डाकू. Okay, a person who we can say lives in the sea और जो लूटता है, जो who is a robber of sea. For there was a pirate, समुद्री डाकू आ गया, climbing in the window. Window is here window, ठीक है। The word window is here used as a window. अब ये window जो बैठाया है ये Belinda, यानी it is a rhyme scheme. Window, the poet has used window to match with the Belinda. That is why this is used here. So suddenly they heard a nasty sound. What did they hear? A nasty sound. And mustard growled. And who is growing? Barking. Who is barking? Mustard. When they hear the sound, kutta bhokta hai. And they all look round and everybody was looking here and there. Meow cried Ink. And oh cried Belinda. For there was a pirate. Who came there? Pirate आ गया, समुद्री डाकू आ गया, climbing in the window. और कहाँ पे चढ़ रहा है? वो विंडो में आ रहा है, यानी उस घर को जहाँ पे वो सब रहते हैं ना, वो उसको लूटने के लिए कौन आ गया? डाकू आ गया। Pistol in his left hand, pistol in his right hand. What he was having? Pistol in his left hand and pistol is in right hand. Who was having pistol? The pirate. And he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass मतलब होता है sword, ठीक है, sword, तलवार। What he was having in his hand? एक sword जो कि decorated होती है, cutlass. He was having a sword with him that was also shining brightly. चाहे आप चाकू बोल सकते हो, छोटी छोटी कटार टाइप में उसके पास एक तलवार थी। Who was having this sword? The pirate. And what he was having, where he was having this? In his teeth. क्योंकि दोनों हाथों से वो क्या करा? पिस्टल थे उसके दोनों हाथों में और मुंह में क्या थी? sword. His beard was black, one leg was wood. उसकी दाढ़ी ब्लैक एंड वन लेग वाज वुड, और एक पैर था वो वुड का था, काठ का। हुज लेग वाज वुड? द पायरेट्स लेग वाज वुड। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड एंड यू नो व्हेन समबडी वुड सी हिम, दैट वाज क्लियर कि पायरेट का जो मूड है वो अच्छा नहीं है, यानी वो कुछ न कुछ गलत करने आया है यहाँ। ही केम हियर टू डू समथिंग रॉन्ग। सो इन दिस 4 lines, pistol in his left hand and pistol in his right hand. In both hands he was having pistol and he held his teeth a cutlass bright. एक तलवार उसके teeth में। His beard was black and one leg was wood. एक पैर wood का था
इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, ये क्लियर था कि उसके इरादे नेक नहीं है, किसके, पायरेट के। इज इट क्लियर एवरीबडी? आई होप यू गॉट दिस। सेम ए बी ए बी चल रहा है राइम स्कीम। ब्लिंदा पेल्ड, ब्लिंदा डर गई, पेल का मतलब था डर जाना, चिल्ला पड़ जाना। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, हु वाज क्राइंग फॉर हेल्प? ब्लिंदा, ब्लिंदा वाज क्राइंग फॉर हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड भाग गया वहां से। व्हेन दे शो द पायरेट, मस्टर्ड, व्हाट हैपेंड? मस्टर्ड फ्लेड विद टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड वहां से भाग गया। टेरिफाई मतलब डराने वाली, येल्प मतलब चीख से। ब्लिंदा भी डर गई, मस्टर्ड वहां से 9-2-11 जो डॉग था वो भी भाग गया। फ्लेड मतलब था रन अवे। इन ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, कहाँ छुप गया जाके? घर के नीचे, बॉटम में, नीचे जाके कौन छुप गया? द डॉग, मस्टर्ड। मस्टर्ड हाइड हिमसेल्फ इन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, माउस होल्ड यानी प्लान, उसने स्ट्रेटेजी बना ली थी अपनी, अकॉर्डिंग टू प्लान वेयर वी हैड गॉन। जो था, क्या नाम है उसका, जो माउस था वो अपने होल में चला गया। माउस होल जो होता है ना, जो जिसमें अपने बिल, उसके अंदर भाग गया। कौन आ गया था वहां पे? समुद्री डाकू आ गया था। क्या क्या था उसके पास? चाकू वगैरह, पिस्टल थी दोनों हाथों में। एंड ब्लिंदा बिकम्स टोटली फ्राइटेन एंड मस्टर्ड फ्लेड हैड रन अवे इन द वेरी टेरिफाइंग येल्प, डरता हुआ चिल्लाता हुआ निकल गया। इंक ट्रिंकल डाउन टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड, वो चली गई अंदर बॉटम में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और लिटिल जो वो था माउस था वो बिल में घुस गया। मेकिंग ए प्लान, जैसे कि उसका पहले से प्लान था मेरे को भागना है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड जिसकी वो मजाक उड़ाते थे, जिसकी वो मजाक उड़ाते थे, सारे मिलकर गिगल करते थे, टीज करते थे, उसको कायर बोलते थे। एवरीबडी, मे बी ब्लिंडा एंड मस्टर्ड एंड माउस एंड किटन, दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम। बट अप जंप कस्टर्ड, वो खड़ा हुआ, उसने जंप किया। स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, स्नोरिंग का मतलब होता एकदम से सड़सड़ाहट सी, गड़गड़ाहट सी आवाज करते हुए, जैसे कोई इंजन बोल रहा है। ही वॉज मेकिंग ए साउंड। क्लैश्ड, क्लैश्ड का मतलब होता है फाउट, भिड़ गया। क्लैश का मतलब होता है यहाँ पे फाउट है। क्लैश्ड, क्लैश्ड, गॉट इट? क्लैश्ड with whom? He clashed. He clashed his tail like a iron in dungeons. Dungeon का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन। गॉट इट? अपनी टेल को एक हथियार के रूप में उसने यूज में लिया। किसने? उसने, ड्रैगन ने। और किससे भिड़ गया वो? उस डाकू से भिड़ गया। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक, ये साउंड है। क्लैटर ये बोलते हैं ओनोमेटोपिया। देखो, जो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा पोएम के अंदर, यदि मान लो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई पोएम के अंदर कुछ स्पेशली कुछ वर्ड ऐसे काम में लिए गए हैं जो साउंड बताते हैं, तो दैट इज नोन एज ए पोएटिक डिवाइस, ओनोमेटोपिया। गॉट इट? तो देखो, क्लैटर, क्लैटर किसी की आवाज होती है, साउंड होता है। एंड क्लैंक, क्लैंक ऑल्सो साउंड। एंड जैंगलिंग, स्क्वेरम, जैंगलिंग का मतलब गड़गड़ाती हुई बस आवाज आ रही है, स्क्वेरम। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर। रोबिन मतलब था बर्ड, और पायरेट पे उसने ऐसे अटैक किया। किसने? उस ड्रैगन ने इतना जबरदस्त अटैक किया जैसे कि एक रोबिन बर्ड होता है। यहाँ पे ऑल्सो सिमिली है। कैसे सिमिली हुई? लाइक, द वर्ड लाइक इज यूज्ड इन दिस पोएम, दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिमिली। ये क्या है? ये सिमिली है। यानी एवरीबडी फ्लैड फ्रॉम दैट प्लेस, सब भाग गए वहां से, एवरीबडी। बट ओनली वन पर्सन वॉज लेफ्ट, दैट वॉज द ड्रैगन, एंड ही फॉट विद हिम वेरी ब्रेवली। बहादुरी से लड़ा, अटैक किया उस पर, अपनी पूंछ से मारा उसको, और
साउंड भी आए, आवाज भी आई। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म, और पायरेट की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे कि बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, उसकी तरह। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंदाज ड्रैगन, गैप का मतलब मुंह खोल के ऐसे देखने लगा पायरेट। ही गैप्ड, उस माउथ वाज ओपन एंड गल्प सम ग्रोग, ग्रोग मतलब होता है ड्रिंक, टू ड्रिंक समथिंग, उसने कुछ पिया, शराब वगैरह भी हो सकती है। गल्प सम ग्रोग, अंडरस्टैंड, ही ड्रिंक समथिंग, उसने पिया, किसने, पायरेट ने, उसने कुछ पिया। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मतलब होता है जहाँ पे वो कुछ ड्रिंक व्रिंक रखते हैं ना पीने के लिए, बोतल वगैरह, उसमें से पॉकेट में से वो निकाला और उसने वो ड्रिंक किया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो नहीं लगी उसको। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको निगल गया। गोबल्ड का मतलब था निगलना, यानी जो ड्रैगन था उसने वो पायरेट को निगल लिया, वो खा गया उसको, इसको समुद्री डाकू को। ब्लिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, ब्लिंदा ने उसको गले लगाया। आफ्टर द फाइट मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको लिक किया। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी नहीं रोया, मोर्न मतलब होता है वीप, फॉर ए पायरेट विक्टिम, उस पायरेट के लिए कोई नहीं रोया क्योंकि वो तो दुष्ट था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली मतलब हैप्पीनेस। गैरेट, गैरेट मतलब होता है डांस, DANCED, गैरेट, गैरेट मीन्स नाचना। दे डांस्ड, हु डांस्ड, इंक एंड ब्लिंक, दे वर डांसिंग इन ए गैरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ नाचने लगे जिसने किसको खा लिया था, पायरेट को खा लिया था। यानी ब्लिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम एंड इंक एंड ब्लिंक ऑल्सो डांसिंग आफ्टर द डेथ ऑफ पायरेट अराउंड द ड्रैगन। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, फिर डॉग बोला, एक्सक्यूजेस देने लग गए अपने अपने। प्रेजेंटली अप स्पोक, स्पोक मतलब बोला, लिटिल डॉग मस्टर्ड बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ए ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। कह रहा है मैं तो दुगना ताकतवर हूं ड्रैगन से, यदि मैं, आई वुड हैव बीन ट्वाइस, दोगुना, एज ए ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, अपसेट होना। कह रहा है वो एक्सक्यूजेस दे रहा था कि मैं कंफ्यूज हो गया, वरना मैं इससे भी तगड़ा हूं। एंड अप स्मोक इंक एंड अप स्मोक ब्लिंक, अब इंक और ब्लिंक भी बोले। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव, वी थिंक, वो बोले हम तो तिगने ताकतवर हैं इनसे। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, फिर बेचारा कस्टर्ड बोला हाँ मुझे पता है, आई एम एग्री विद यू कि आप कितने बहादुर हो मेरे से। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मेरे से तो सारे ही ब्रेव हैं। एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, हु वाज सेइंग दीज वर्ड्स, कस्टर्ड। डॉग कहा कि मैं अगर कंफ्यूज नहीं होता, अपसेट नहीं होता तो मैं दुगना ताकतवर। वो इंक और ब्लिंक कह रहे हैं वो हम तिगने ताकतवर हैं आपसे, और वो बेचारा कह रहा है ओके यू ऑल आर ब्रेवर देन मी। ब्लिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, वो ब्लिंदा अभी भी अपनी उसी घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, अपने ब्लैक किटन के साथ और माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, साथ है येलो डॉग भी है, रेड वैगन भी है। एंड हर रियलियो ट्रिलियो लाइक पेट ड्रैगन, और उसका रियल और ट्रू ड्रैगन भी। ब्लिंदा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, अभी भी कह रही है कि मैं है ना एक ड्रम की तरह, मतलब इतनी ताकत है मेरे अंदर। ब्लिंदा नाउ शी वाज आल्सो एडमिटिंग दैट आई एम ए ब्रेव। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक आज भी कहते हैं कि हम शेर का पीछा कर सकते हैं। मस्टर्ड इज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेस, और मस्टर्ड कह रहा है कि मतलब टाइगर जितना ताकतवर हूं गुस्से में। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर नाइस सेफ केस, लेकिन बेचारा वो चुपचाप पड़ा है पिंजरे के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी सारे मिलकर उस ड्रैगन को चिढ़ाते थे तुम कुछ नहीं हो, तुम कायर हो। एट लास्ट ड्रैगन ही था जिसने उन सबको बचाया, किसे, पायरेट से। लेकिन ड्रैगन ने अपना काम साइलेंटली किया, उसने कभी बड़ाई नहीं की अपनी, और अपने आप को सही रखा।
So that is our poem which we have completed today. I hope you got this. कि how they were teasing the dragon, how they were calling him the coward, and जब टाइम आया, समय आया, सारे भाग गए. वो डॉग भी भाग गया, वो ब्लिंक और इंक सब भाग गए. ओनली द कस्टर्ड वाज दैट पर्सन हु सेव ऑल लाइव्स. और सभी की जिंदगी उसने बचाई और उस पायरेट को वो जिंदा निकल गया. लेकिन फिर भी वो एकदम शांत था. इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट दिस. थैंक यू वेरी मच.